आज का ये इवेंट जो है, मेरा नाम रौनक खैर खान है। मैं मेरे फैमिली को बुलाया और मिस्टर रमना मूर्ति के साथ कर रहा हूँ मैं इवेंट, जो जय हो के वो फाउंडर है। जय हो इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया which works for the unity of Muslims and Hindus mostly. I've been working for inter-community harmony from years. From the last 50 years, I've been celebrating Holi. And from the last 10, 15 years, I've been celebrating Sankrantri also with all the rituals. So all the youngsters of India get to know where the traditions are coming from. And not only I want to teach the traditions to our Indian children who are losing touch of the roots of our festivals and all that. They, like in Sankranti, they fly kites, but they don't know why they are flying kites. So I want to educate them, and I do this in the name of Mehboob Ali Khan, who's my great grandfather, was a sixth Nizam, and he's one of the most secular persons. But he's reported as the most secular person by Sarojini Naidu and another person called Cyril Jones. You can Google those people, and also Mr. Sir Vishwesvaraya, who was in charge of making Nizam Sagar and Swan Sagar and all that. So he knows Mehboob Ali Khan got into the water and did a yagna in 1908, and he helped all the people. He opened his palaces for people who were disrupted by the floods. So we celebrate these festivals in his name to have this memory alive, to show what is a brotherhood. Like Sarojini Naidu says, he was considered a saint by the Hindus also. So I'm not trying to revive his memory because he's my great grandfather. I just wanted to say that was a love that was shared between different communities, and it should stay alive now and not been manipulated by some political interests where, just to polarize votes and gain votes. So this festival is held for that, and we are going to do it again and again. We just finished doing Sankrantri. We did it Holi now, and now this is in Ramzan. We are doing this Iftar, and then we might do for Eid, and we are going to continue doing this for bringing people together. And I'm lucky to run into this Jai Bharat because a big organization. And suddenly I've got manpower. Otherwise, I was doing this all alone. And this place of mine is famous for those holies. This is road number 25, Jubilee Hills. This is my estate. You must be knowing about it. If you Google it, you'll get it. It's called Raunaq's High Man-Made Hill. Raunaq's High Man-Made Hill, Road 25. So I'll end with that. My name is Raunak Khair Khan. And I've got my family also together from 1 to 6 Nizams, and also the 7 Nizams who are different, groups. So I want them to be together to fight a common enemy. And once they can save their lands and properties and all that, and they, have a better standing, and through, Sharia, which is the Indian law, I want them to settle their matters on their own later on together, amicably. But first important point is to save the land from outsiders as land grabbers and all that. So I'm trying to get them all together. Right now, they're all here, 1 to 6 Nizam. 7 Nizam, which are different groups, but they're all under me. I'm backing both of them, and they both declared me as the 9th Nizam, and they're here roaming around somewhere. I think they've given bites also. So I want them to be together, and once they consolidated the lands and all that, I want them to settle it between each other. So I'm trying to back them for that. So that's my, when they've selected me or opted for me as a 9th Nizam in a democratic way, in a democratic India, that is my idea to support them. तो टोल्ड चारमीनार बोल के सईदा इमाम बोल के किताब लिखी है, उसमें उनके लेटर्स है सरोजनी नायडू के. तो उन्होंने शी टॉक्स अबाउट द गंगा जमुना तहजीब, और उन्होंने बहुत बड़े राइटर है, फ्रीडम फाइटर है, पोइट थे सरोजनी नायडू. तो उनका नाम दे रहा हूँ मैं खुद बोल लेने से मेरे नाना के बारे में कुछ होने वाला नहीं है. और वो जो सिरिल जोन्स की किताब है, मेमोइर्स ऑफ सिरिल जोन्स, उन्हें रेलवे इंजीनियर है. तो उन्हें लिखा जहाँ पे महाराष्ट्र में उन्हें रेलवे पटरी जा रहा था हैदराबाद से वाडी तक बॉम्बे में, बिकॉज महबूब अली खान का रेलवे था प्राइवेट. तो उन्हें अलग अलग कम्युनिटीज़ से गुजरता था, तो उन्हें लॉग बुक रखता था. उसमें लिखता कि उन्हें कई गांव वाले जो सो महबूब अली खान को के पास छोटे दरगाह टाइप बना के डोम टाइप बना लिए थे महबूब अली खान की दरगाह के साथ. वहाँ जाके उन्हें मन्नता मांगते थे, जैसा रहता ना बच्चा पास हो जाओ, ये हो जाओ. और मरने के बाद भी उनको अकीदा था कि उन्हें मर के बाद से भी कुछ करेंगे. और ये किसकी बात हो रही, वो तो हिंदुओं की हो रही. मुसलमानों में आपको मालूम है थोड़े लोगों को दरगाह जाना अलाउड है, थोड़े लोगों को नहीं है. और है मुसलमान 20%, लेकिन हिंदुआ तो 80% है, उनको कोई रुकावट नहीं है. तो 80 में से समझो 15-20% चले गए, तो बहुत बड़ी बात है. वो 15% वो तो पूरा मुस्लिम पॉपुलेशन के बराबर हो जा रहा. तो उतना ही बोलने का है आपको. थैंक यू. हाँ, समझ के चल रही वो कंचा गच्ची बोल के वो 2724 एकड़ है वो, और गवर्नमेंट 400 एकड़ पे लड़ ले रही, 450 एकड़ पे. स्टेट वाले फॉरेस्ट क्लियर करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही कि वो जो सेंटर का सब्जेक्ट है कंजर्वेशन, आप कैसा काटे क्या काटे, वो लड़ी चल रही. उसमें मैं इंप्लीड हुआ ये बोल के कि वो ब्लू बुक प्रॉपर्टी है जो निज़ाम के नाम पे मर्जर के टाइम पे, जब निज़ाम इंडिया से मिले वो टाइम पे एग्रीमेंट हुआ बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निज़ाम. कई प्रॉपर्टीज निज़ाम के पर्सनल वो एक्सेप्ट हुए, वो प्रॉपर्टी उसमें की एक है. तो वो प्रॉपर्टी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं. वो तकरीबन 1-2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी होगी वो, इवन गवर्नमेंट रेट से. बिकॉज 2724 एकड़ किसको बोले आप, समझ लो आप. और वो भी
गच्चीबोली, कंचा गच्चीबोली में है वो। तो दैट इज वन ऑफ द प्लॉट्स। वैसे कई है, पैलेसेस के लिए भी लड़ रहे हैं, हल्लू हल्लू पूरा आ जा रहा हो पिक्चर में। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को जो एप्लीकेबल लॉ है शरिया है वो, और कोई बादशाह वादशाह आजकल रियल बादशाह है नहीं वो। 1971 में सब खत्म हो गया, 1948 में इंडियन आर्मी टेक ओवर कर ली, 71 में तो पूरा ये सिलसिला खत्म हो गया। तो अब पूरे मुसलमान अपना अपना शेर के लिए लड़ेंगे, उनके लिए मैं बैक कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, हर साइड को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। जो लड़े हुए लोग भी है, उन लोग भी मेरे साथ है, दो अलग अलग ग्रुप। तो वो ग्रुप भी दोनों को लेके चल रहा हूँ मैं बाहर रह रहा हूँ जितना हो सका, झगड़े में नहीं पड़ने, लेकिन मैं भी शायद एंटर होऊंगा। मैं सब कुछ जहाँ से हो सका बाहर से सपोर्ट दे रहा हूँ, इसलिए उन लोग मेरे को नाइन्थ निज़ाम मान के चल रहे हो फिलहाल। और नाइन्थ निज़ाम होता आसिफियाई डायनेस्टी, डायनेस्टी बोल तो खानदान। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वो तो गलत बात हो जाती, बिकॉज हैदराबाद इंडिया बन गया, हैदराबाद स्टेट नहीं है, तो आप निज़ाम ऑफ हैदराबाद कैसा बोलते? तो हैदराबाद तो इंडिया है। तो नाइन्थ निज़ाम ऑफ द आसिफियाई डायनेस्टी हूँ मैं, डायनेस्टी बोल तो खानदान, रॉयल खानदान को बोलते। तो थैंक यू वो क्लैरिफिकेशन। मुबारक बोल रहा हूँ मैं, और मैं सब है पूरी दुआओं के लिए कि केसेस जो सो उसमें सक्सेस हो, इसलिए मैं थोड़े अपने खानदान के लोगों को बुला लिया। रमना मूर्ति वगैरह तो हिंदू मुसलमान सबको बुलाए, मैं थोड़े बहुत अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला लिया कि मेरे साथ रहना, मेरा साथ देना, वो फिर से कंफर्म करना। बिकॉज हर एक जानता कि 1 to 6 निज़ाम के बच्चे मेरे साथ है, बहुत कम लोग आ जानते हैं कि 7th के भी है, तो 7th के भी साथ है मेरे। वो बताने के लिए कर रहा हूँ मैं कि अलग ग्रुप्स के है, लेकिन सबका फ़ायदा है उसमें। फिर बाद में थोड़ा बहुत रहेंगे उन पे, क्या ना इत्तेफाकी रहेंगी वो बाद में सॉर्ट कर सकते हैं। ज़मीन तो अपने हाथ में आना है, ये नहीं कि पहले गुंडे ही लेके चले आ रहे हैं, लैंड वगैरह बेच दे रहे हैं, ज़मीन ही नहीं है, आप बाद में लड़ रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है। तो पहले मेरा ये है कि आप पहले ज़मीन अपने हाथ में ले लो, उसको मैं फाइनेंशियली बैक करूँगा, वो हो गया बाद से आपस में, बाद में अपन सॉर्ट आउट कर लेंगे। ईद के बाद फिर एक दावत दूंगा, अगर सक्सेस हुआ तो 27 को केस है वो मार्च को, पर कई केसेस ये पोस्टपोन होते हैं, वो क्या होता नहीं मालूम, लेकिन उसके आगे का एंड तो नहीं बोल सकते। लेकिन पूरे प्रॉपर्टीज तो हल्लू उसमें आ जाने हैं शरिया में कि सबके खानदान को मिलना चाहिए। जी नहीं साहब, ऑलरेडी हम लोग कर दिए, होली करे, ऑलरेडी संक्रांति करिए, जब उगादी आएगा तो उगादी करेंगे। विल बी sending you well wishes, good wishes for that also. Maybe we'll do some small event there also, but I'm depending on them because I'm getting tired. There are 3 events in a row within 1 month. It's not easy for me. There's like about 200-300 people out here. Last event was about 200-300 people again. पूरा खाने का इंतजाम वगैरह, it's not a joke. फिर आज बारिश हो रही थी, मैं इतना डर गया। फिर वो बाजू मेरे टेनेंट को बोला कि वो क्रिकेट उसका पिच है इंडोर, तो मगर वो जरूरत पड़े तो वहाँ पे हम लोग आके खा लेंगे, मगर वो जगह नहीं रही तो कितना मुश्किल होता। सोचा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इतने लोगों को बुलाना, और मैं अकेला हूँ। अब जो ये जय भारत वगैरह है, उनका ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो हेल्प है। और मेरे थोड़े कजन्स भी है, और आदिल यार खान है, भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वेरी वेल स्पोकन पर्सन, गुड फॉलोइंग एंड ऑल दैट। आई एम होपिंग ही आल्सो पार्टिसिपेट इन सर्टेन थिंग्स। दैट्स अनदर फैमिली, हम लोग फर्स्ट निज़ाम से कनेक्टेड है, पहले निज़ाम के रिश्तेदार आए हम लोग समरखंड में, बुखारा में, तो वहाँ से हम लोग आए उनके साथ। और मैक्सिमम जो मिनिस्टरशिप क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ का, रिलीजन का, हेल्थ का वगैरह, हमारे यार खान खानदानों में था वो, और वो तकरीबन 3 पीढ़ी तक होल्ड करे। तो अब आप ऐसे 4 हेल्थ और लॉ और रिलीजन वगैरह आप होल्ड करे, तो दैट मीन्स आप पूरी गवर्नमेंट आप ही चला रहे हैं। तो हम ना वो करे, ज़्यादा अपना नाम नहीं कमाए, लेकिन उनके मिनिस्टर्स तो हम लोग ही थे वो तकरीबन 3-4 जनरेशन तक। तो ही इज़ फ्रॉम दैट फैमिली, वी आर ओरिजिनली फ्रॉम द फर्स्ट निज़ाम। तो वहाँ से ब्रांच होके समरखंड बुखारा से वी आर ओरिजिन फ्रॉम दैट। तो ये मेरे और एक दोस्त है, ही इज आल्सो गोइंग टू हेल्प मी, लेट्स सी हाउ फार ही आल्सो से एफर्ट डाल रही, वो काफ़ी आपके हमारी पूरी फैमिली अप्रिशिएट कर रही, बिकॉज एक अकेले आदमी स्टैंड दे रही, बहुत बड़ी चीज़ है ये। और ज़्यादातर पूरी फैमिली को हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, जो भी है उनका पर्पस। हम वी आर विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू।